Good morning, students. I welcome you all to 17th July morning class GS Mains Paper 1 answer writing class. Right. So today we'll write about GS Mains Paper 1. So what will be the question for ourselves? So good morning to you all and welcome to my amazing class. Okay. So this is 34th session of means answer writing practice class. Okay. So you can go back and watch all my classes regarding this. So this is 17th of July 2020, 10 a.m. morning. So welcome you all. So this is about history. History and main personalities, main figure of Indian history, which formed Indian history in a good way, right? So question regarding Swami Vivekananda. How Swami Vivekananda was the messenger of Indian wisdom to the Western world. Discuss. We have to discuss it in 250 words. So you need to write in 150 words back, right? और आप मुझे 150 वर्ड्स में ये मुझे रिटर्न करेंगे आंसर. सो लेट्स डिस्कस अबाउट स्वामी विवेकानंद. आज तक हमने आई थिंक विवेकानंदा जी पे कोई आंसर नहीं किया है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. और बहुत इंटरेस्टिंग हम इसका आंसर अप्रोच करेंगे, राइट? सो व्हाट शुड बी राइट अप्रोच फॉर दिस? स्वामी विवेकानंदा, उनका इंट्रोडक्शन हमको देना होगा. व्हाई स्वामी विवेकानंदा has the title of messenger of Indian wisdom to the Western world, and why? Is it correct to give him this title or not? Conclusion means what we have learned. We had learned from this great personality, right? Let's see. So what should be the right background? Right background would be like Swami Vivekananda became the messenger of Indian wisdom to West. January 12 is the birth anniversary, is celebrated as also National Youth Day. Remember, National Youth Day, right? So, birth anniversary of Swami Vivekananda, the famous Hindu spiritual leader and intellectual from the late 19th century. So, Swami Vivekananda जो थे उनको उनका जो विजडम है, विजडम हम जो कहेंगे उनका जो ज्ञान का जो नॉलेज है, जो उनका गहराई है, उससे हम उनको उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया में उनको उसके लिए जाना जाता है, राइट? एंड इम्पॉर्टेंट रिलीजियस रिफॉर्मर इन इंडिया. रिलीजियस रिफॉर्म हम इनको बोलेंगे. रिलीजियस मीन जैसे सोशल रिफॉर्मर हमारे राजा राम मोहन राय थे, ऐसे ही हमारे रिलीजियस रिफॉर्म्स भी बहुत सारे हमारे महानुभाव, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने दिए हैं. उनमें से स्वामी विवेकानंदा भी एक थे. Swami Vivekananda is known to have introduced the Hindu philosophies of yoga and Vedanta to the West. So ये मेन फेस है स्वामी विवेकानंद जिन्होंने योगा और वेदांता को वेस्ट में फैलाया, राइट? इंडिया की तरफ से. So Netaji Subhash Chandra Bose, also from Bengal, had called Vivekananda the maker of modern India. मीन्स जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को आइडियोलॉजिकली फॉर्म किया, जिन्होंने एक रास्ता दिखाया हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को कि कैसे हमको इधर उधर जो भटकना नहीं चाहिए और हमारा जो गॉड है वो एक ही फॉर्म में है. कोई सबके मतलब जितने रिलीजन होते हैं सब कोई और अलग फॉर्म नहीं है. आपका गॉड आपके खुद आप अपना फॉर्म करते हो, आपको इवॉल्व कर सकते हो उस रूप में, राइट? सो इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया को एक रास्ता दिखाया. दैट इज वाई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट or north to south, all of the states, all of the places in India, Swami Vivekananda is very famous, right? So maker of modern India. In his honor, the government of India in 1984 declared his birthday as National Youth Day. As I told you, National Youth Day is celebrated on 11th of January every year, right? So the aim of celebration is to spread the message of strength, fearlessness, sacrifice, character building and excellence among the youth. यही भी तो पीरियड होता है जो यूथ में आप अपना स्ट्रेंथ, अपना कैरेक्टर जो मेनली जो आपको इवॉल्व करेगा एज अ पर्सन, आप में विजडम लाएगा, वो कैरेक्टर बिल्डिंग का. अगर आप ये अपना यूथ का सबसे बेस्ट टाइम, सबसे एनर्जेटिक टाइम अगर अपना इस स्ट्रेंथ को बनाने में देते हैं तो आप भी स्वामी विवेकानंदा से उनकी रास्ते पे चल सकते हैं, राइट? सो फियरलेसनेस हमको लेना चाहिए, सेक्रीफाइस हमको करना चाहिए जरूरत होने पे, अपने अच्छा कैरेक्टर जो आपके नेशन के लिए, आपके देश के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए अच्छा हो, ऐसा हमको कैरेक्टर बिल्ड करना चाहिए, राइट? तो ये उनका एक मेन मैसेज रहता है. स्वामी विवेकानंदा प्रोपाउंडेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन बिल्डिंग अ नेशन. एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एजुकेशन कैन चेंज एवरीथिंग, ओके, एनीथिंग. आप एजुकेशन के दम पे ही आप किसी सोसाइटी में अगर चेंज लाना चाहते हैं तो सिर्फ इसी से है. He believed that education was the primary means of empowering people.
यस, इट इज द प्राइमरी मीन्स। प्राइमरी मतलब सबसे पहला तरीका है जिससे हम अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं। ही स्पेशली एम्फोसाइज्ड ऑन एजुकेशन बीइंग रेलिवेंट टू द कॉमन मासेस। सो एजुकेशन, एजुकेशन ही है जो कॉमन मासेस को रेलिवेंट करती है और उसी को आगे बढ़ा सकती है। रामकृष्ण मिशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंदा which works in the area of value based education, culture, health, women empowerment, यूथ एंड ट्राइबल वेलफेयर एंड रिलीफ रिहेबिलिटेशन। ये जो काम थे, ये रामकृष्ण मिशन जो इनका इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने काम किया। राइट, स्वामी विवेकानंदा और उनकी जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में हम देखते हैं। बॉर्न इन कोलकाता, कॉस्ट जनवरी 12 1863 एज नरेंद्र नाथ दत्ता। ओके, ये इनका ओरिजिनल नाम है। फ्रॉम द वेरी अर्ली एज ही नर्चर्ड, मतलब उन्होंने अपना ऐसे अपने आप को डेवलप किया एन इंटरेस्ट इन वेस्टर्न फिलोसफी। देखो, उनको वेस्ट में इंटरेस्ट था, बट उनकी जो फिलोसफी थी उसमें इंडियननेस भी उन्होंने डाला। ओके, उससे अच्छी बातें ली। तो ऐसे ही हमको करना चाहिए। कोई भी हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय उससे अच्छी चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए, ऑलमोस्ट हमेशा। राइट, और उनकी जो बुरी चीजें उसको छोड़ के और अपनी भी जो अच्छी चीजें उसको आगे लेके आना चाहिए। हिस्ट्री एंड थियोलॉजी एंड वेंट ऑन टू मीट द रिलीजियस लीडर रामकृष्ण परमहंस, who later became his guru. He remained devoted to Ramakrishna until the latter's death in 1886, right? So in 1893, he took the name Vivekananda after Maharaja Ajit Singh of Khetri states requested him to do so. विवेकानंदा जी ने अपना जो नाम है वो किसी खेतरी स्टेट के जो महाराजा थे उनके कहने पे किया था। चेंजिंग फ्रॉम सच्चिदानंदा दैट ही यूज बिफोर। सच्चिदानंद मतलब जिसको हर चीज में आनंद आता है, सच्चा आनंद। ओके, उनको। और विवेकानंद, विवेक मीन्स पेशेंस, हैव ग्रेस। ओके, उस ग्रेस के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप वो विजडम जो लेते हैं उसको विवेकानंदा कहते हैं। राइट, और आफ्टर रामकृष्ण डेथ विवेकानंदा टर्न toured across India and set after educating the masses about ways of improve their economic conditions as well as imparting spiritual knowledge। मतलब कहने का है कि स्वामी विवेकानंदा ने पूरे ऑल ऑफ द इंडिया टूर किया और इंडिया के अलावा उन्होंने पूरे वेस्ट में, वर्ल्ड में भी टूर किया और बहुत एजुकेशन के लिए बहुत इंक्लाइन थे। वो जहाँ से उनको एजुकेशन मिलता था वहीं लेते थे और अपना एजुकेशन भी स्प्रेड करते थे लोगों में। इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो एफर्ट करते थे। राइट, और स्पिरिचुअल नॉलेज और साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को भी मैनेज करते थे। तो हमारा हॉलिस्टिक जो डेवलपमेंट है किसी एक इंडिविजुअल का, वो कैसे डिपेंड करता है? आपका फिजिकल, आपका माइंड और आपका स्पिरिचुअल, ये तीन चीजें आप बैलेंस करके चलते हैं तभी आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाता है। राइट, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल, राइट, एज अ वॉर्ड, एज अ स्टूडेंट, अगर आप अपनी ये सब चीजें एक साथ लेके चलेंगे तभी आपका लाइफ जो है हैप्पीनेस आएगा उसमें, जिसको आप रियल हैप्पीनेस कह सकते हैं। So, Chicago address. What should be the Chicago address would like? Okay, so Chicago means a place in West, means in America. अमेरिका में एक स्टेट है शिकागो। विवेकानंद इज स्पेशली रिमेम्बर्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर स्पीच इन्होंने जो रिलीजियस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड इन शिकागो 1893, यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही फुल ऑफ विजडम, फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एक बहुत ही अच्छा लेक्चर इन्होंने दिया था और उसी लेक्चर से पूरी दुनिया आज उनको जानती है। द स्पीच, जब इंडिया को कोई भी नहीं जानता था, जब इंडिया वॉज ओनली अ कॉलोनी, ओनली अ कॉलोनी, ओनली अनएजुकेटेड और वेरी बहुत ही अंडर डेवलप्ड जब कंट्री, जिस टाइम पे हमारे अंडर द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश, अंडर द प्रेजेंस ऑफ जितने भी इन्वेजन हुए, मुस्लिम इन्वेजन, उसके बाद जब इंडिया का बहुत ही बुरा सिचुएशन था हर तरह से, इकोनॉमी भी और हमारा एजुकेशन में और स्पिरिचुअलिटी, जब हम एकदम बैक कर रहे थे, तभी स्वामी विवेकानंदा ने अकेले अपने पूरे कंधों पे पूरा अपना देश को लिया और ऐसे मैसेज दिया कि पूरी दुनिया आज तक उनको याद रखती है। कवर्ड टॉपिक्स इंक्लूडिंग यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड रिलीजन। राइट, ये इन्होंने टॉपिक कवर किए और इतना अच्छा, आप कभी सुनिएगा, कभी जानिएगा, अगर कभी मौका मिले तो कभी पढ़िएगा इसके बारे में। बहुत ही अच्छा, और आप एंकरेज हो जाएंगे इससे, ये आपकी जो इनकी स्पीच है वो सुनेंगे तो। राइट, सो हमें जो इम्पोर्टेंट स्पीच होती है वो बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, और हमको ये सब जो चीज़ें आसपास हमारे बहुत कम है आजकल तो, और पहले की जो चीज़ें वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको इन चीज़ों के लिए इंक्लाइन होना चाहिए। राइट,
He began delivering lectures at various places in US and UK and became popular as the messenger of Indian wisdom to the western world. मतलब इंडिया का जो मैसेंजर, इंडिया में जो विजडम था, जो वेदों की नॉलेज थी, जो शास्त्रों की नॉलेज थी, जो इतना हजारों साल पुराना, कहते हैं इंडिया इज द ओल्डेस्ट कंट्री, तो इतना हमारा विशाल का है, हमारा विजडम है, हमारा नॉलेज है, इंडिया का हिस्ट्री है इतना पुराना। तो और इंडिया का वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यही डेवलप हुआ, तो सिविलाइजेशन भी इंडिया में ही शुरू हुआ था। तो ये सब जो नॉलेज है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड तक पहुंचाने के लिए विवेकानंदा जी ने बहुत एफर्ट किया इसके लिए, राइट। तो शिकागो जो पार्लियामेंट हुई थी, रिलीजियस पार्लियामेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया उन्होंने। इसका लेगेसी इनका क्या है, आज इनको हम किस रूप में देखते हैं। थ्रू हिज स्पीचेस एंड लेक्चर्स विवेकानंद वर्क टू डिसेमिनेट हिज रिलीजियस थॉट, मतलब उनकी स्पीचेस से उन्होंने अपने रिलीजियस थॉट सब में बांटे। ही प्रीच्ड न्यू वेदांता एंड interpretation and of Hinduism through a Western lens and believed in combining spirituality with material progress, right। मतलब मटेरियल प्रोग्रेस भी, मतलब इकोनॉमिक भी हमको जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपना साधु बन जाए और कोई कुछ नहीं चाहिए हमको जीवन में। हमको इकोनॉमी भी डेवलप करना चाहिए और साथ में अपना स्पिरिचुअलिटी भी इंक्रीज करना चाहिए कि हमारा जो लोगों में इतना हेट्रेड है वो खत्म हो जाए, जो इतने मिसचीव्स हैं वो चल रहे हैं वर्ल्ड में वो खत्म हो जाए। तो हमको अपना स्पिरिचुअल नॉलेज भी इंक्रीज करना चाहिए, राइट। सो लाइक दिस राजा राज योगा, let's see, राज योगा, जन योगा, कर्म योगा आर सम ऑफ द बुक्स ही रोट। ये उनकी कुछ किताबें, आप चाहे स्पेयर टाइम में बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट आपको ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, आपको एंकरेजमेंट मिलता है, राइट। बिफोर हिज डेथ इन 1902 विवेकानंदा रॉट अ वेस्टर्न फॉलोवर, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट। एक वेस्टर्न फॉलोवर उनको मीन्स उनको वेस्टर्न का जो नॉलेज था वो उन्होंने लिखा, क्या लिखा उसके बारे में, इट मे बी दैट आई शैल फाइंड इट गुड टू गेट आउटसाइड माई बॉडी, मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी बॉडी से बाहर कभी, मतलब कहने का मतलब कि अपनी बॉडी छोड़ दें, कभी मर जाए तो ऐसा क्या होगा, टू कास्ट इट ऑफ लाइक अ वर्न आउट गारमेंट। एक जैसे हमने किसी कपड़े को पहन के उतार दिया, ऐसे ही हम अपनी बॉडी को भी छोड़ के जा सकते हैं। बट आई शेल नॉट सीज टू वर्क, मैं काम करना नहीं छोड़ूंगा। आई शेल इंस्पायर मैन एवरीवेयर अंटिल द होल वर्ल्ड, मैं हमेशा हमेशा के लिए जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग, आने वाली जनरेशन है, उनको इंस्पायर करता रहूंगा, होल वर्ल्ड, जब तक पूरा दुनिया शल नो दैट इट इज वन गॉड, वन विद द गॉड, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही भगवान है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष पाने का, ठीक है। तो ये उनकी महान विजडम की बातों में से कुछ एक फ्रेज यहाँ पे ऐड किया हमने। सो 10 इंस्पिरेशनल कोट्स बाय स्वामी विवेकानंदा, ये आप बहुत अच्छा ऐसे में यूज कर सकते हैं, आप अपनी हर जगह एथिक्स के पेपर में इसको यूज कर सकते हैं। पेपर 1 में तो हिस्ट्री का हो ही गया, तो जहां मन करे ये स्वामी विवेकानंद के कोट्स आप लिख लीजिए, आप बहुत आपके आंसर को एनहेंस करेंगे, राइट, और आपकी इंडिविजुअली भी आपको बहुत इंस्पायर करेंगे। देन लेट्स सी, ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, यूनिवर्स की सारी पावर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क। ओके, यह हम हैं, हम सब हैं जिनको अपना अपना हाथ और अपनी आईज वो है वो रोने से रोकना चाहिए, और क्राई दैट इट इज डार्क, और मतलब ये डार्क नहीं है, हम अपनी नॉलेज से इसको एनहेंस कर सकते। कहने का मीनिंग ये है, वी आर वट आर थॉट्स हैव मेड अस, हमारे विचार ही हमको बनाते हैं। जैसे हम, हमारे विचार हैं, आप कोई मैटर नहीं आप कहाँ पैदा होते हैं, क्या आपका आपको बॉडी मिला, कैसा फैमिली मिला, कैसा बैकग्राउंड मिला, कैसा, कुछ भी मैटर नहीं करता। आपका मैटर करता है व्हाट यू हैव नाउ, आपके थॉट्स, आपके थॉट्स जैसे आप वैसे उसको आपको दुनिया आपको देखना स्टार्ट कर देगी, राइट। सो टेक केयर अबाउट यू व्हाट यू थिंक, आप जब सोचें अच्छा ही सोचें, पॉजिटिव सोचें, ओके किसी के बारे में गलत ना सोचें। वर्ड्स आर सेकेंडरी, सेकेंडरी वर्ड्स मतलब कहना, जब हम बोलते हैं वो तो अलग बात है, बट जो हमारे विचार है वो सबसे पहले आते हैं। थॉट्स लाइव, विचार जिंदा रहते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद आज भी हमारे बीच जिंदा हैं बिकॉज ऑफ उनके जो थॉट्स थे। और दे ट्रेवल फार, वे बहुत दूर तक जाते हैं, आप नहीं जाते बट आपके विचार जाते हैं, आपकी अच्छी बातें जाती हैं, राइट। तो इसीलिए आपको अपनी लाइफ में जितना हो सके सब अपना अच्छा सोचना चाहिए। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, अपना एक आइडिया, अपना एक गोल बना लीजिए, उस गोल को अपना लाइफ बना लीजिए, ड्रीम करिए इसका, लिव ऑफ दैट आइडिया, उस ड्रीम को सोते जागते वही सोचते रहिए। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया एंड जस्ट लीव other idea alone. This is
द वे टू सक्सेस, ये सक्सेस होता है जो हम जिसको सक्सेस कहते हैं। और जब सक्सेस आता है, आप उसको फील करते हैं, तब आपको लगता है कि आपने इस दुनिया में आने का आपका पर्पस ही फुलफिल हो गया है, राइट। सो वो मीनिंग होता है सक्सेस का। ये नोट्स लिखिए, अपनी वॉल्स पे चिपका लीजिए चारों तरफ, राइट। ऑल द डिफरेंसेस इन द वर्ल्ड आर ऑफ डिग्री एंड नॉट ऑफ काइंड, बिकॉज वननेस इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग। मतलब सब डिफरेंस है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ये सिर्फ डिग्री है, कोई चेंज नहीं कर सकता है हमको। बिकॉज वननेस इज द सीक्रेट ऑफ एवरीथिंग, हर सबका जितना भी चारों तरफ जो चीजें हैं उसका क्या सीक्रेट है, एक होना, यूनिटी, सबका पावर यूनिटी में है, ठीक है। इफ मनी हेल्प अ मैन टू डू सो, टू डू गुड टू अदर्स, अगर पैसा दूसरों को हेल्प करने में आपकी मदद करता है, इट इज द ऑफ सेम वैल्यू, बट इफ नॉट, इट इज सिंपली अ मास ऑफ एविल। अगर ये पैसा आपके किसी काम, दूसरों को हेल्प करने के यूज नहीं करते हैं आप, तो वो किसी एविल से, किसी दुष्ट से कम नहीं है। एंड द सूनर इट इज गॉट रिड ऑफ द बेटर, ओके। मतलब और जब तक ये आप इसको बेटर नहीं बना देते, तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं है। तो जितना मनी लिया आपने, वो मनी तब तक आपका यूजलेस है जब तक आप उसको दूसरों के बेनिफिट के लिए, आपकी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यूज नहीं करते हैं। तो राइट, यू हैव टू ग्रो फ्रॉम द इनसाइड आउट। मतलब आपका ऐसा नहीं आपको बॉडी ग्रोथ करना है, आपको सिर्फ अपना फेस वैल्यू पे ध्यान देना है, नहीं, आपको इनसाइड आउट हर जगह से आपको ग्रो करना है। नो वन कैन टीच यू, वन नो नन कैन मेक यू स्पिरिचुअल, कोई आपको स्पिरिचुअल नहीं बना सकता जबरदस्ती पकड़ के। देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। आपका सोल कैसा है, आप कैसा दूसरों के बारे में सोचते हैं, कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जब बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो पता चल जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ, जब भी बोलिए अच्छा बोलिए, कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। और अगर थोड़ा सा आपको लगे कि सिचुएशन आपके अगेंस्ट हो रहा है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा स्टेबल बनिए, थोड़ा सा आपका उस सिचुएशन में रुकिए 2 मिनट, और फिर थोड़ा सा आप देखेंगे, आप धीरे धीरे आप उसमें आपको वो चीजें इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी जितना आपको फर्स्ट टाइम कर रहा था, राइट। तो अपने विचारों को जितना हो सके नेगेटिव बनने से रोकिए, पॉजिटिव बनाइए, राइट। द मोमेंट आई हैव रियलाइज्ड गॉड सिटिंग इन द टेम्पल ऑफ एवरी ह्यूमन बॉडी, हर एक इंसान में एक भगवान होता है, कोई माने या ना माने, चाहे उस भगवान को हम दुष्ट बना ले या अच्छा बना ले, वो हम पे डिपेंड करता है, सब में एक सोल है। द मोमेंट आई स्टैंड इन रेवरेंस बिफोर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड सी गॉड इन हिम, that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes and I am free। कहने का मतलब है, जितने भी इस दुनिया में पर्सन है, उसके वो सब मेरे लिए पूजनीय हैं, उनकी सब मैं वर्शिप करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, और सब मेरे लिए अच्छे हैं, कोई मेरे लिए बुरा नहीं है। और जब मैं उनके बारे में सोचूं ऐसे, तो मेरे लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा चीज बन जाए, और इसी यही चीज है जो मुझे फ्री कर देगी किसी भी बॉन्डेज से, लाइफ में आने वाली हर बुराई से मुझे अलग कर देगी। Truth can be stated in 1,000 different ways, yet each one can be true. Okay, truth किसी भी 1,000 different ways में बताया जा सकता है, बट हर एक चीज ट्रू ही होगी। ट्रुथ का मतलब कितने भी चेहरे हो सकते हैं सच के, बट सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, राइट। एज डिफरेंट streams having different sources all mingle, their waters in the sea, so different tendencies, various thought, though they appear crooked or straight, all lead to God। मतलब कितनी कोई सी भी रास्ते से हम जा सकते हैं, चाहे हम उसका रास्ता ले, समुद्र का रास्ता ले या नदी का रास्ता ले, बट सब जाके कहाँ मिल जाते हैं, कोई नदी नाला कहीं, सब जाके कहाँ मिलते हैं, समुद्र में आखिर में। तो यही रीजन है कि एक ही गॉड है, हमको उसी को पाना है, तो क्यों ना अभी से शुरू कर दें, राइट। When an idea exclusively occupies the mind, it is transformed into an actual physical or mental state। जब एक आइडिया अपना पूरा फॉर्म ले लेता है, एक्चुअल फिजिकल फॉर्म और मेंटल फॉर्म ले लेता है, तो वो पूरी डायनेस्टी को, पूरी वर्ल्ड को, पूरी अपकमिंग जनरेशन को, सबको चेंज करने का ताकत रखता है, राइट। सो अपना जो आइडिया है ना, उसको बेस्ट बनाइए, वो आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए, आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वही माइंडसेट आपको देखना, आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे, वैसे दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगी, राइट। सो शांत बनिए और दूरदर्शी बनिए, थोड़ा सा अपना जो एक गोल है वो लाइफ में सेट कीजिए, बिना गोल के कोई लाइफ ही नहीं है, राइट। अपना एक गोल सेट कीजिए, उसी पे लग जाइए काम पे। तो ये जो हमारी जो यूथ के लिए जो जरूरी है सबसे ज्यादा, कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, सेलिब्रेसी फोकस कीजिए, उसको प्रोपगेट कीजिए, जैसे जो स्वामी विवेकानंद का जीवन था, थोड़ा उससे सीखिए आप। आज हमारी सोसाइटी है, इतना जल्दी है सबको सब करने का, तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमको कहीं ना कहीं बैकवर्ड, हमारी जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एज ए ह्यूमन, हम जब मैकाक से हम जब
डायरेक्ट हमने ह्यूमन बना तब से ये वो वाली टेंडेंसीज होती हैं आपकी, तो उन टेंडेंसीज को छोड़ के आप रियल ह्यूमन बनने का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा जाइए। इसका मतलब ये नहीं आप पूरा ही साधु बन जाइए, बट आपके थॉट्स में वो चीजें होनी चाहिए, राइट। आपकी ग्रोथ में वो चीजें मैटर करती हैं। तो ये देखिए इतना अच्छा, इतने अच्छे विचारों के साथ मैंने आपका दिन का स्टार्ट कर दिया है। सो ये जितने भी थॉट्स मैंने बताया आपको, इतनी अपनी लाइफ में एक छोटा सा भी आप पार्ट अगर करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी लाइफ देखना चेंज हो जाएगी। मैंने तो फील किया है, राइट। सो ये देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये मेरा ट्विटर है, फेसबुक है। और आज आपका 4 इवनिंग का 4 PM का क्लास नहीं होगा ड्यू टू सम अनसर्टेन रीजंस, ये आपका मैं क्लास आज नहीं ले पाऊंगी। सो आपका 9th क्लास का हिस्ट्री हमारा चल रहा है, वो आप करना, फर्स्ट 2 चैप्टर है वो आप जरूर पढ़ना। हम उसका क्लास कल करेंगे, राइट। सो ये मेरा इंस्टा हैंडल, ये मेरा ट्विटर, ये वगैरह वगैरह जो भी होता है, और ये मेरा यूट्यूब पे आप इसको लाइक कर दीजिए, आप इसको शेयर। आज कमेंट जरूर करना, कमेंट मैं सबका देखना चाहूंगी, क्या कमेंट करेंगे आप इस क्वेश्चन पे। इतने अच्छे विचारों के साथ, अपने थॉट्स के साथ अगर अपना डे अपना शुरू किया है, तो आज आपकी मैं देखना चाहूंगी कि कितना अच्छा आप आज मेरे लिए कमेंट लिखेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। आप मुझे 11 AM मेरी क्लास में ज्वाइन कीजिए, राइट, और विल मीट यू देयर, राइट। थैंक यू सो मच।